It is a multi-billion-dollar industry. Some say bigger than professional baseball, football, and basketball combined. The question is it safe? Jesse Jane, drugs overdose. August Amis, suicide by hanging. Alex Jordan, suicide by hanging. Karen Dior, HIV positive. Lola Ferrari, murder. Megan Lee, gunshot. یہ سب وہ فیمس پورن سٹار تھے جو خوفناک طریقے سے مارے گئے تھے. یہ سٹارز کیوں مارے گئے؟ کیا انہوں نے پورن کنٹینٹ بنانے سے انکار کیا تھا یا کچھ اور ہی ریزن تھا؟ Like just at 14, I was just like, you're going to be like the number one do it. It's definitely changed my life. My parents were divorced. My sister has severe schizophrenia. There was her in front of me. Just at 14, I was just like, you're going to be like the number one do it. The danger in it is of industry and being glamorized is that young girls like me are going to see all the positives and they're not going to see the negatives. A lot of people think that I'm just like down to and like I'm down to do this and that. Because of my past and like professional. ایڈلٹ ویب سائٹس اور ایڈلٹ کنٹینٹ یہ وہ سائٹس ہیں جن کو ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور لائف میں ایک نہ ایک بار تو یہ سائٹس آپ نے ضرور وزٹ کی ہوگی. ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ ورلڈ کی ٹاپ ایڈلٹ سائٹس پر ہر مہینے 13 ارب وزٹس آتے ہیں اور جو سیکنڈ ٹاپ ویب سائٹ ہے ان پر 9 ارب وزٹس آ جاتے ہیں. اب کوئی ایگری کرے یا نہ کرے لیکن لائف میں تو سب نے یہ ویب سائٹس ضرور وزٹ کی ہوگی. آج کے وقت میں جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک سیکنڈ میں 18,000 لوگ ان سائٹس کو یوز کر رہے ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی لیکن ہر ایک سیکنڈ میں اس کنٹینٹ پر 2.5 لاکھ روپے اسپینڈ کیے جاتے ہیں. صرف انٹرنیٹ پر ہمارے لیے یہ چند کچھ ویب سائٹ ہے جنہیں ہم سیلف سیٹسفیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن یہ جو 10 سیکنڈ کا پلیجر آتا ہے یہ فری میں نہیں ملتا. اس انڈسٹری کے پیچھے کافی کچھ چلتا رہتا ہے جس کو جاننے کے بعد آپ خود ایڈلٹ سائٹس کو یوز کرنے سے ڈرو گے. آج انٹرنیٹ پر 4 ملین سے بھی زیادہ ایڈلٹ سائٹس مل جائیں گی جو کہ پورے انٹرنیٹ کا 12% کور کرتی ہے. پورن ہب، بریزرز اور ایسی جتنی بھی ایڈلٹ سائٹس ہے جو کہ آج تک آپ نے سنی ہوگی اس سب کو صرف ایک ہی کمپنی اون کرتی ہے. یعنی کہ پورے پورن انڈسٹری کے پیچھے صرف ایک انسان کا ہاتھ ہے جو اپنی آئیڈینٹی کافی زیادہ سیکرٹلی رکھتا ہے. تو آج اس پورے امپائر کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور جانیں گے یہ جو 5 سیکنڈ کا پلیجر ہے جو سب کو ملتا ہے اس کی کیا کوسٹ ہوتی ہے, انڈسٹری کے بیک ہینڈ میں کیا چلتا ہے اور اس کنٹینٹ کو پروڈیوس کرنے میں کتنے لوگوں کا سیکریفائسز ہے اور ساتھ ہی میں اس کی وجہ سے آپ کے مائنڈ پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے جانیں گے اس ویڈیو میں. Internet porn. I first got a hold of it around the age of 11 or 12. What? Like, it's so weird. The Bad Guy singer reveals that she started watching porn when she was just 11 years old. We're all just doing our thing, you know what I'm saying? So when I was 13 or 14 years old, I think around 14, I actually injured myself going at it. 2000 کی شروعات میں جب انٹرنیٹ نہیں ہوا کرتا تھا تو لوگ ہر قسم کے کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے CDs یا DVDs کا یوز کرتے تھے اور چاہے وہ موویز، ٹی وی شوز یا ایڈلٹ کنٹینٹ ہی کیوں نہ ہو. اس وقت ایڈلٹ کنٹینٹ ڈسٹریبیوشنز میں ایک کمپنی بہت ٹاپ پر تھی اور وہ اس کنٹینٹ کو DVDs کے تھرو سیل کیا کرتی تھی. اس کمپنی کا نام ویوڈ انٹرٹینمنٹ تھا جن کے سال کا ریونیو اس وقت پر $100 ملین تھا اور پھر ایئر بائی ایئر انٹرنیٹ اسٹریم ہونے لگا اور ویمیو جیسے پلیٹ فارم بھی لانچ ہونے لگے. پھر 2005 سے 2008 تک کی DVDs کی سیل 86% سے ڈراپ ہو گئی. میڈ گیزرز، اسٹیبل مینوس، فیرس اینٹون اور گیسم یوسف. سال 2004 میں ان 4 لوگوں کا گروپ انٹرنیٹ پر پیسہ کمانے کے لیے ڈفرینٹ نیچز میں ویب سائٹس کریٹ کیا کرتے تھے. اس وقت انہوں نے کچھ ایڈلٹ ویب سائٹس بنائے, اسے 2 سیگمنٹ میں رکھا. پہلا تھا پے ٹو واچ, دوسرا تھا ٹیوب سائٹس یعنی کہ فری ٹو واچ. اب ٹیوب سائٹس کے لیے پورا آئیڈیا یوٹیوب سے کاپی کیا ہوا تھا. بیسیکلی ٹیوب سائٹ ایڈلٹ کنٹینٹ کے لیے ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم تھا اور یوٹیوب سمپل کنٹینٹ کے لیے. ایون ان کا نام بھی یوٹیوب سے انسپائرڈ تھا جیسے ایڈلٹ ٹیوب, پون ایٹسٹرا. بٹ ان سائٹس پر صرف ری اپلوڈڈ کنٹینٹ اویلیبل تھا جس کی وجہ سے بہت سارے کاپی رائٹ ایشوز کا سامنا تھا. ان سارے ایشوز کو ختم کرنے کے لیے ان چاروں نے ایک الگ پروڈکشن کمپنی بنائی جس کا نام رکھا بریزرز. بیسیکلی یہ ایک ہالی ووڈ جیسی ایک پروڈکشن کمپنی تھی بٹ صرف ایڈلٹ فلم کے لیے. اب ٹیوب سائٹس کو بہت ہی کم وقت میں زیادہ سکسیس مل گئی تھی. ان کی سائٹس پر بہت زیادہ ٹریفک جنریٹ ہونے لگا اور سال 2007 تک ٹیوب سائٹس پورے انٹرنیٹ کو ڈومینیٹ کرنے لگی. پھر اسی سال میڈ گیزرز نے $3,000
$100 पर एक डोमेन नेम खरीद लिया जिसका नाम था pornhub.com, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। एडल्ट कंटेंट का मतलब था ये वेबसाइट बहुत तेजी से लोगों के बीच पॉपुलर होने लगी। साथ में ट्यूब साइट्स को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही थी। तो अब उन चारों ने अपने बिजनेस को सीक्रेटली रखने के लिए और लीगल इश्यूज से बचने के लिए एक पेरेंट कंपनी फॉर्म की जिसका नाम था मेनवेन, और इन सारे एडल्ट साइट्स को मेनवेन के अंडर पुट किया। लेकिन साल 2010 में कुछ इंटरनेट डिस्प्यूट्स की वजह से अपनी सारी एडल्ट साइट्स बेचनी पड़ी। उन्हें खरीदा फेबियन थिलमन ने। ये बंदा मेनसेट कंपनी का ओनर था जिसमें प्ले बॉय और अदर वेबकैम जैसी और भी वेबसाइट्स आया करती थी, और अब उसके साथ पोर्नहब, ब्रेजर जैसे और भी वेबसाइट्स आ चुकी थी। यानी कि दुनिया में जितना भी एडल्ट कंटेंट भी अपलोड होगा उसका सिर्फ एक ओनर था, और वो था फेबियन थिलमन, जो कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने नेक्स्ट जनरेशन एफिलिएट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया था। ये सॉफ्टवेयर ट्रैक करता था कि कितने यूजर्स ने वेबसाइट के एड और बैनर्स पर क्लिक किया है, और उसके बेसिस पर कमीशन को कैलकुलेट किया जाता था। उसी सॉफ्टवेयर से कमाए हुए पैसों से फेबियन ने सारे एडल्ट साइट्स को ओन करना स्टार्ट किया। 2006 में उसने प्ले बॉय के राइट्स खरीदे, और फिर 2010 में पोर्नहब और दूसरे अदर वेबसाइट्स को भी खरीदा। फेबियन एक एसईओ एक्सपर्ट भी था, तो उसकी मेंबरशिप है पोर्नहब और भी ज्यादा तेजी से ग्रो होने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उसे वेबसाइट्स टॉप सर्चेस में कैसे लाने हैं। पोर्नहब को ग्रो करने के लिए फेबियन को फंडिंग की जरूरत थी, तो फिर उसने 350 मिलियन की फंडिंग उठाई, और उसमें मेजर इन्वेस्टर्स थे जेपी मॉर्गन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। फिर 2012 में फेबियन ने मेनवेन और मेनसेट दोनों को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बनाई माइंड गीक के नाम से। अब जितने भी एडल्ट साइट्स हो या उनका प्रोडक्शन हो, तो वो सिर्फ एक कंपनी के हाथ में था जिसका नाम था माइंड गीक। लेकिन ये कंपनी सीक्रेटली सारे एडल्ट साइट्स को ओन किया करती थी। ये खुद को एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की तरह रिप्रेजेंट किया करते थे, और अपने सारे साइट्स को मिलाकर प्रेजेंट में अगले 200 साल तक का कंटेंट इन लोगों के पास मौजूद है। एडल्ट कंटेंट के बारे में ज्यादा हेडलाइंस या न्यूज देखने को नहीं मिलती, तो किसी को उसके बारे में पता नहीं कि आखिर इनके बैक हैंड में कैसे काम चलता है। ये इंडस्ट्री ज्यादातर सीक्रेटली रहना पसंद करती है और काफी ज्यादा शेडी भी है। हमें अपने सामने कुछ फाइनल मिनट का रिजल्ट देखने को मिलता है जिसे सब लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उस इंडस्ट्री के काफी लोगों के हिसाब से ये आज तक वर्स्ट और बी ग्रेडेड इंडस्ट्री है काम करने के लिए। Weston did porn and doing a whole lot of drugs, and I got really fucked up one night, and I was at a club, and I don't really remember the circumstances that led up to this, but I had like an actual gang. सब पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग के थ्रू अपना प्रॉफिट बनाने का एलिगेशंस भी लगा है, इवन के ये प्रूफ भी हुआ है। और स्पेशली साल 2004 में एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफी स्ट्रेंज ईयर रहा है, जहां बहुत सारे स्टार्स खौफनाक तौर पर गायब हुए हैं। एडल्ट इंडस्ट्री के जाने माने नाम जैसे सोफिया लियोन, जिनके 26 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, और इसका रीजन था इंडस्ट्री से हुआ एक्सप्लॉयटेशन, और कुछ सोर्स के अकॉर्डिंग उनकी डेथ के पीछे की वजह थी ड्रग ओवरडोज। मिली विलियम्स को लेकर भी सेम न्यूज है। थियाना फील्ड भी उसी ड्रग ओवरडोज की वजह से मर गई थी, और साथ ही साथ ज़हनी टॉर्चर भी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ किस तरह का टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। और अब ऑब्वियसली ये जो नाम से पता चलता है कि एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री काम करने के लिए कितना ज्यादा फी दी होगी। वहाँ पर पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो नहीं हो सकता, और इसका आंसर दिया लाना रोड्स ने, जो कि इंडस्ट्री की टॉप परफॉर्मर थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह उन्हें एक्सट्रीम एक्टिविटी करने के लिए फोर्स किया जाता है, और एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग भी था, और ऐसा किसी एक के साथ नहीं हुआ। ये हर किसी का एक्सपीरियंस है। ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करने के लिए उनको अपनी कॉन्शियसनेस खोनी पड़ती है। जितने भी एक्ट्स हम फिल्म में देखते हैं वो ज्यादातर ड्रग्स या अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, और बहुत सारे स्टार्स के यंग एज में ही डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस इंडस्ट्री का हिस्सा क्यों बनते हैं? उसकी बड़ी रीजन है इंडस्ट्री की ग्रोथ और मोनेटाइजेशन। बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, और सब एक्ट्रेसेस यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आती, बल्कि मेजोरिटी लोगों को यहाँ पर फोर्सफुली ट्रिक करके लाया जाता है। मतलब उन्हें एक्चुअल काम करने के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया जाता था। एक एडल्ट वेबसाइट गर्ल्स टू पोर्न के ओनर मैथ्यू इजाक और माइकल थ्रेड को 14 साल के लिए प्रिजन में भेजा गया। ये लोग इंटरनेट पर मॉडलिंग जॉब्स का एड चलाया करते थे, और उन्हीं एड्स के थ्रू गर्ल्स को हायर करने के बाद उन्हें एडल्ट फिल्म में काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। उन्होंने इवन कुछ लड़कियों को भी हायर करके रखा था जो एड्स के थ्रू मॉडल्स को कन्विंस करने का काम करती थी कि ये जो फिल्म शूट हो रही है ये कहीं पर भी अपलोड नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं होता था। उन वीडियोस को सारे इंटरनेट पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, और उन लोगों ने 100 वीडियोस के थ्रू 17 मिलियन का प्रॉफिट भी जनरेट किया था। फिर उन पर कुछ विक्टिम्स आए और उन पर केस फाइल किया गया, और इन दोनों ऑनर्स को 14 साल की सजा हुई। एक वुमन जिसकी वीडियो पर 300 मिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स थे, उसने कहा कि आई वॉज robbed of my privacy, my dignity and peace of mind. I was once viewed as a beautiful, fun-loving and strong woman who was known for athleticism. I was caring friend and a daughter my parents were proud. और ऐसे ही सेम एलिगेशन पोर्नहब पर भी लगे थे। उसी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे गर्ल्स के कंसर्ट के बिना
वीडियो अपलोड हुआ। Pornhub markets itself as a mainstream site for adult content, attracting 130 million users a day, which, by the way, is reportedly more than Netflix or Amazon. More than 30 women are now suing Pornhub's parent company, MindGeek. They accuse it of exploiting them for profit, posting and promoting graphic videos of revenge, even child all in an effort to drive up revenue. उस वजह से बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग चलाए गए और बहुत सी कैंपेन चलाई गई थी। उसी कैंपेन के नतीजे में कैनेडियन गवर्नमेंट ने पोर्नहब को फोर्स किया कि 1 करोड़ वीडियोस को रिमूव करे, और ये वो वीडियोस थी जो गर्ल्स से कंसल्ट के बिना अपलोड किए गए थे। पोर्नहब पर हर साल ऑलमोस्ट 4 मिलियन फोटोज और वीडियोस अपलोड होते हैं, और इतने सारे कंटेंट को माइंडिंग के कुछ एम्प्लॉय ऑडिट किया करते थे। एडल्ट कंटेंट बहुत सारे नंबर में अवेलेबल है और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके कंज्यूम करने का नंबर भी बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इन 3 वेबसाइट पर हर मिनट में 1,35,000 नए व्यूज ऐड होते हैं, और आज के जमाने में हर किसी के पास बहुत ही अर्ली एज में इंटरनेट का एक्सेस आ जाता है, और वक्त से पहले पर्सनल फोन मिलना एक प्रॉब्लम की जड़ बनता है, जो है कौन एडिक्शन, जिसको कंज्यूम करने की स्टार्टिंग एज 11 से 13 साल हो चुकी है, और 16 से 22 साल की एज में ये कंटेंट सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। वक्त से पहले एडल्ट कंटेंट कंज्यूम कर लेना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक सर्टेन एज तक आपके अंदर फिजिकल और बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। सो यू डोंट अंडरस्टैंड सेक्सुअलिटी। जब कोई भी इंसान एक अर्ली एज में एडल्ट फिल्म को कंज्यूम करता है तो इस मोमेंट पर वो अपनी इनोसेंस खो देता है। उसका वुमेन रिलेशनशिप्स को देखने का पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। फिर वो चाह कर भी ऐसा नहीं सोच पाएगा जैसे वो कंटेंट को कंज्यूम करने से पहले सोचा करता था। सैडली हमारे मुआशरे में एडल्ट फिल्म और मूवीज की सबसे बड़ी सेक्स एजुकेटर है, और इन मूवीज में दिखाया जाता है कि वुमेन इज नथिंग मोर देन अ टूल ऑफ मेल प्लेजर। ये फिल्म्स इमोशनलेस और ह्यूमनलेस सेक्स एक्सपीरियंस को प्रमोट करता है, और अगर सबसे बड़ी पॉपुलर सर्च टर्म पर नजर मारी जाए तो उसमें डोमिनेटिंग टर्म जरूर मिलेगी। वुमेन लाइक्स टू बी डोमिनेटेड दिस और दैट। 7 कंट्रीज की स्टडी को भी कंपाइल की गई तो एक कंक्लूजन निकाला गया कि एडल्ट कंटेंट जो ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनमें फिजिकल एग्रेशन ज्यादा होता है, और उसका एडिक्शन एक लूप की तरह है, और उसका लूप में आने के बाद वापस आना एटलीस्ट इम्पॉसिबल है। जब हम ये कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन 4 गुना ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है। हर एज में ये एडिक्शन खतरनाक हो सकता है, लेकिन अर्ली एजेस में ये ज्यादा डेंजरस क्यों है? दोस्तों, हमारे फोरहेड में फ्रंट एरियाज होते हैं जो ये काम करते हैं कि हमें कितने अमाउंट में प्लेजर चाहिए। जब हमारे ब्रेन में डोपामिन ड्राइव हिट करती है जो हमें ऐसी चीजें करने पर मोटिवेट करती है जिसको देखकर प्लेजर मिलता हो, तभी ये फ्रंटल एरियाज हमें उन ड्राइव्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एक तरफ डोपामिन ज्यादा की डिमांड करता है और दूसरी तरफ फ्रंटल एरियाज हमें उस चीज के बारे में रेशनली सोचने के बारे में फोर्स करता है, लेकिन अर्ली एजेस में ये फ्रंटल एरियाज पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। तो एक कम उम्र लड़की की बांड को ये पता नहीं होता कि उसे एक्चुअल में कहाँ रुकना है, तो जब वो उस एडल्ट कंटेंट की वर्ल्ड में कदम रखता है तो उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ती चली जाती है, और फिर ये चीज उसकी फ्यूचर की रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट करती है, और इस एडिक्शन पर कंट्रोल पाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।